Hello learners, welcome to the channel Genius Grid. We are going to start a new chapter of 8th grade, that is conservation of plants and animals. It's much demanded chapter. Some students are feeling much confusion in conservation of plants and animals. Although it is not much difficult, but yeah, of course you have to learn some names of the animals that belong to different category, that you have to learn some animals that belong to endangered species, some of threatened species, some of extinct species. So need not to worry about this chapter. I will try to make you learn each and every topic in detail. So let's start, but before that, do subscribe to my channel, share it with your friends, and don't forget to press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. So let's start. Conservation of plants and animals. What is conservation? Conservation is to conserve, that is to protect. How we protect the animals and plants that are available in our nature. So this chapter belongs to this conservation, that is protection of wildlife. We are gifted by the God by this wildlife type of species, and we have to conserve them, we have to protect them. So let's start. Plants and animals are intrinsic part of an ecosystem. Plants and animals हैं जो वो क्या है, एक मतलब पार्ट ऑफ सिस्टम, मतलब सिस्टम का एक बहुत ज़बरदस्त कहोगे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और there are about 13.6 million species of plants and animals and microbes, that is microorganism. तो एनिमल से लेके जो मतलब बिगेस्ट आप कह लीजिए एनिमल है या प्लांट है, उससे लेके स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक देयर आर अबाउट 13.6 मिलियन स्पीशीज जो हमारी अवेलेबल हैं इस इकोसिस्टम में. तो हमारी इतनी ज़्यादा वैरायटी है, मतलब ये आप कहोगे नेचर में, और ये हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कहेंगे इसे इंट्रिंसिक पार्ट इकोसिस्टम का है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है. और ये हमारा मतलब एक बहुत बेसिक पार्ट और बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमारा वाइल्ड लाइफ या इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करता है. तो हमारा क्या बनता है, हमारा ये एक ड्यूटी बनती है कि हम इनको कंजर्व करके रखें. तो ये है, आप इसमें जो इस स्लाइड में है आपका एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ज़्यादातर नहीं पूछा जाता बट फिर भी मोर देन 13.6 मिलियन स्पीशीज, मतलब प्लांट्स और इनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स की अवेलेबल हैं जो आपका इकोसिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं. अब व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब टॉपिक है और इस पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी. बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एनीथिंग दैट इज लिविंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बायो. एंड डाइवर्सिटी, यू नो व्हाट इज डाइवर्सिटी. इट इज़ विविडनेस, मतलब डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो हैं, दैट इज डाइवर्सिटी. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इट इज़ द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड ऑन अर्थ. जो भी वैरायटी, मतलब जितनी भी टाइप की लाइफ है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दैट कम्स इनटू बायोडाइवर्सिटी. It includes from microorganism to blue whale, that is the largest animal or mammal that is present on the earth, and red giant wood tree. What is red giant wood tree? It is the largest or biggest plant that is available on the earth. So what is if someone asks you what is the largest animal that is found on the earth, that is blue whale. And similarly, what is the largest or biggest plant that is found on the earth, the biggest tree that is found on the earth, that is red giant wood tree. And what is the definition of biodiversity? Occurrence of innumerable number of different types of organisms
and whole range of other varieties that are adapted to different environments. थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ये, है ना, मतलब इसकी डेफिनेशन, बट आप इसको अगर पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे तो यू विल डेफिनेटली मेक इट अंडरस्टैंड. ऑक्यूरेंस ऑफ इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्या ऑक्यूरेंस मतलब होना, इनन्यूमरेबल मतलब कितनी, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते. डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म. ऑक्यूरेंस ऑफ इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इतने सारे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का होना एंड उनकी वैरायटी का होना, दैट आर अडेप्टेड टू आवर climate or environment, that is biodiversity. In other words, simple words, different type of living organism and their varieties that are adapted to different environment and present on our earth comes under the category of biodiversity. And biodiversity, that means is occurrence of different living organism, different type of living organism, starting from microorganism and ending up to giant whale or giant red giant tree, that is biodiversity. तो बायोडाइवर्सिटी छोटे से छोटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे लेकर एक बड़े से बड़ा जो भी एनिमल या प्लांट है उसमें जितने भी मतलब लिविंग क्रिएचर्स आते हैं, मतलब जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं और उनकी डिफरेंट वैरायटी, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी. अब क्या है, बायोडाइवर्सिटी तो है, बट बायोडाइवर्सिटी तो हमारा मतलब बहुत अच्छा एक चीज़ है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे ह्यूमन की सिविलाइजेशन बढ़ती गई, उसकी नीड्स बढ़ती गई, क्या होना शुरू हुआ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होने स्टार्ट होगी. बायोडाइवर्सिटी को हमने धीरे धीरे खोना स्टार्ट कर दिया. क्यों होने शुरू हुआ, क्योंकि ये ऐसा हुआ, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और जैसे जैसे ह्यूमन की सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, जैसे जैसे उसकी नीड्स बढ़ती गई, उसको लैंड की ज़रूरत हुई, उसको अदर नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत हुई, उसको वुड की ज़रूरत हुई, उसको एनिमल्स को हंट करने की ज़रूरत हुई, एनिमल्स को हंट करके वो खा जाता था, प्लांट्स को ट्रीज़ को वो एज टिम्बर यूज़ करता था, प्लांट और अलग अलग मतलब उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स थी. तो उसने अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए ये डाइवर्सिटी जो बायोडाइवर्सिटी थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स पे अपना मतलब हक जमाना स्टार्ट किया और उनको नेगेटिवली उसने अप्रोच किया, मतलब उनको किल करना स्टार्ट किया, उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट हुआ. उससे क्या हुआ, जो ये बायोडाइवर्सिटी जो नेचर ने, गॉड ने हमें दी हुई थी, ये धीरे धीरे लूज होनी स्टार्ट हुई. Conversion of natural habitat into agriculture land can result in the biodiversity as it disrupts the ecosystem that supports various plants and animal species. तो इसने क्या लिखा है कि जो ह्यूमन था, ह्यूमन को क्या था, ह्यूमन अगर आपने एसएस की बुक में प्रिमिटिव मैन आता है तो उसमें था, पहले तो ह्यूमन क्या करता था, ह्यूमन क्या करता था, कहीं पे भी मिला कोई भी कच्चा फ्रूट खा लिया या कोई भी कच्चा जानवर, मतलब जानवर है उसको मतलब अपने वेपन से मारा और उसको पकड़ के खा लिया. बट धीरे धीरे जैसे उसके अंदर मतलब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, तो आपका सबसे पहले प्रिमिटिव एजेस में है कि ही अडॉप्टेड क्या करना स्टार्ट किया उसने, एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मतलब उसने वीट, बार्ले, ये सारी चीज़ की क्रॉप्स ग्रो करनी स्टार्ट की ताकि उसे फूड मिल सके और उसे इधर उधर नॉमैड की तरह ना घूमना पड़े. तो उसके लिए उसने क्या किया, उसने जब मतलब ये कल्टीवेशन करनी चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, तो उसके लिए उसकी बेसिक नीड क्या थी, उसको सबसे पहले चाहिए थी लैंड. और लैंड पे क्या थे, लैंड पे फॉरेस्ट थे, डिफरेंट टाइप के घने घने वन थे, तो उसको तो डेफिनेटली उनको साफ करना पड़ा ताकि ही कैन कन्वर्ट दैट लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड. और उससे क्या हुआ, जो उसने तो अपने मतलब सेल्फिश मोटिव कह लीजिए इसको, जो भी अपना ये कह लीजिए अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए उसने ये फॉरेस्ट को स्टार्ट किया, बट उसको ये नहीं पता था उससे इतना ज़्यादा इकोसिस्टम हिल जाएगा या बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा. तो एग्रीकल्चर की जो स्टार्ट हुई, एग्रीकल्चर का ये तो हुआ कि ह्यूमन की तो डेवलपमेंट होती गई, बट जो ये बायोडाइवर्सिटी थी,
जो एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, माइक्रोब्स थे, जो भी था, ये जो हमसे बात नहीं कर सकते हैं, ये बेजुबान चीज़ें हैं, इनकी लॉस स्टार्ट हुई। और ह्यूमन का क्या हुआ, ह्यूमन की इवोल्यूशन स्टार्ट होती गई, ह्यूमन मतलब डेवलप करता रहा और बायोडाइवर्सिटी लूज होती रही। ये सारी चीज़ें एक मतलब आयरनी है, बट आप इसमें कई बार कुछ कर नहीं पाए। फर्स्ट जो इसका कारण रहा वो था डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन एज द नेम सजेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट का कटना, मतलब फॉरेस्ट को हटाना। क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस सच एज फॉर क्रॉप कल्टीवेशन और लाइवस्टॉक ग्रेजिंग कैन लीड टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस एमिशन। तो इसका इतना सारा जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे उसने फॉरेस्ट को साफ करना स्टार्ट किया या पेड़ों को काटना स्टार्ट किया, तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का क्या कहूँगी मैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट छिन गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। जिससे क्या हुआ, उनकी मतलब वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो गए। और उससे क्या हुआ, उन्होंने एक तो ह्यूमन ने क्या किया, अपनी एग्रीकल्चर लैंड्स बनानी स्टार्ट कर दी, उसलिए उसने डिफॉरेस्टेशन की। सेकंड उसने क्या किया, जो फॉरेस्ट थे उसमें अपने जो लाइफ स्टॉक थे, जैसे एनिमल्स थे जिनको वो अपने यूज़ के लिए मतलब अपने पास रख रहा था, डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए, उन्होंने उसको वहाँ पे ग्रेज कराते थे, मतलब उनको घास खिलाने वो कहाँ पे लेके जाते थे, फॉरेस्ट में। तो उससे भी क्या हुआ, धीरे धीरे जो प्लांट्स थे, छोटे छोटे श्रब्स थी, हर्ब्स थी, वो सारी की सारी ख़त्म होने लगी। और उससे सब क्या हुआ, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स थे जो उस क्रॉप के अंदर रह रहे थे, क्रॉप नहीं सॉरी ग्रास के अंदर रह रहे थे, हर्ब्स के अंदर रह रहे थे, श्रब्स के अंदर रह रहे थे, या ट्रीज़ पे रह रहे थे। अब ट्रीज़ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि एक आपको पैरट दिख गया या आपको एक पिजन दिख गया, वही रह रहे हैं। अगर आप एक ट्री को ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी रूट से लेके उसकी लास्ट लीफ तक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं। वो उनका एक हैबिटेट है, मतलब नाइके कहते हैं उसको, वो उनका एक जगह है रहने के लिए। तो जैसे मतलब आप देखिए नीचे से स्टार्ट करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसके आसपास एल्गी रहती है, उसके आसपास फंगस की ग्रोथ होती है, उसके नीचे मशरूम्स का भी आप देखिएगा। अच्छा, जो उसका बार्क होता है, जो उसका आप कहोगे पूरा का पूरा स्टेम होता है ट्री का, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आप कहोगे इंसेक्ट्स अलग अलग टाइप के रह रहे होते हैं। उसके ऊपर आप स्क्वाड मतलब गिलहरी को चढ़ते देखेंगे, उसके ऊपर आप चींटियों को चढ़ते देखेंगे। तो और नेस्ट तो उसके ऊपर बर्ड्स बनाते ही हैं, बट बीच में आप कई बार देखेंगे बार्क को, उसकी मतलब तने को उसके भी खोखला करके कई टाइप के एनिमल्स या कहेंगे आप बर्ड्स रह रहे होते हैं। तो ये सब जब ह्यूमन ने मतलब ग्रास कह लो, चाहे श्रब्स कह लो, चाहे हर्ब्स कह लो, चाहे कुछ भी कह लीजिए आप, प्लांट्स कह लीजिए आप, ट्रीज कह लीजिए, अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए साफ करने स्टार्ट किए, डिफॉरेस्टेशन करना स्टार्ट किया, तो इन सबके घर छिन गए। इन सबके घर छिन गए। घर छिनने के कारण इनके पास कोई भी चीज़ नहीं रही और धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन कम होने लगी, क्योंकि बिना घर के, बिना खाने के, बिना पीने के उनके पास कुछ नहीं रहा और वो मरने लगे। और मरने लगे तो उससे क्या हुआ, जो आपका फूड चेन होता है, फूड चेन का बैलेंस ख़त्म होने लगा। क्योंकि इंसेक्ट्स पे जो फ्रॉग्स रहते थे, इंसेक्ट्स मर गए तो फ्रॉग बेचारे किसको खाएं। अब फ्रॉग्स भी धीरे धीरे मरने लगे तो आगे स्नेक्स किसको खाएं। जो अपनी फूड चेन पड़ी है वो सारी की सारी मतलब एक ढंग से डिस्टर्ब होने लगी। द लॉस ऑफ फॉरेस्ट लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और उसने क्या किया, डिस्टर्ब किया सारा का सारे इकोसिस्टम। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई यहाँ लॉस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कई बार हम सोचते हैं पेड़ ही तो कट रहे हैं, भाई उससे क्या हुआ, थोड़े से ही एनिमल्स का लॉस होगा, बट ऐसा नहीं होता। एक पेड़ कितने ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने ही इंसेक्ट्स, कितने रेप्टाइल्स, कितने मैमल्स, कितने एम्फीबियंस, कितने मतलब आप कितनी चीज़ें मान लीजिए, बर्ड्स का एक घर होता है। और एक पेड़ कटने पे इतने लोग मतलब इतने जो आप कहेंगे लिविंग क्रिएचर्स मतलब शेल्टर लेस हो जाते हैं। तो जब डिफॉरेस्टेशन मतलब पूरा का पूरा एक एरिया से
एक फॉरेस्ट ही ख़त्म हो जाना, तो आप सोचो उससे कितने लिविंग क्रिएचर्स का घर छिनता होगा और वो बेचारे मतलब मरना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक बायोडाइवर्सिटी का मेन रीज़न था डिफॉरेस्टेशन। अब कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जैसे मैंने पहले बताया, डिफॉरेस्टेशन मतलब हुआ क्यों। एक तो पहले ही बता चुकी हूँ कि लैंड फॉर कल्टीवेशन चाहिए थी लोगों को, प्रिमिटिव लोगों को, या आज भी लोग काटते हैं कोई भी जगह, कहीं पे भी पेड़ उग रहे हैं किसी जगह, तो उसको उन पे घर बनाना होता है या उसको एग्रीकल्चर पर्पस से, मतलब उस पर कोई खेती करनी होती है, कोई अपनी क्रॉप लगानी पड़ती है, या उस पर अपना कोई हाउस बनाते हैं, उस पर कोई मॉल बनाते हैं, आजकल उस पर कोई फैक्ट्री बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के ये सारे कारण हैं। और टू ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग पेपर्स। अब पेपर्स किससे बनते हैं, एज यू ऑल नो, पेपर्स कहाँ से बनते हैं, वुड से, ट्रीज से। तो ट्रीज जब कटते हैं, और पेपर की देखिए हमारे पास कितनी डिमांड है आजकल, हम हर बच्चे को नई कॉपी चाहिए होती है। पहले तो हम क्या करते थे, पुराने हमारे टाइम में पुरानी जो हमारी कॉपीज बन जाती थी उसके पेपर्स फाड़ फाड़ के उनको इकट्ठा करके फिर हम एक रफ नोटबुक बना लेते थे। बट आजकल तो बच्चों को हर समय नई कॉपी, हर चीज़ नई चाहिए होती है। उससे ये तो है भाई, ठीक है, अच्छा लगता है, बट कभी सोच के देखिए उसके लिए कितना पेपर लगता है। और पेपर किसकी कॉस्ट पे आता है, आपके फॉरेस्ट। कितने फॉरेस्ट कटते हैं तब आपके पेपर्स बनते हैं। तो आपका वुड जो आप घर में कई लोग जलाते हैं, जो जैसे झुग्गी में रहने वाले लोग होते हैं या जिनके पास आज तक गैस की फैसिलिटीज़ नहीं है, वो बेचारे किस पे खाना बनाते हैं, वो जंगलों से लकड़ी काट के लेके आते हैं और उस पे खाना बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन होती है, मतलब फॉरेस्ट काटे जाते हैं। फर्नीचर आप जिस पे बैठे हैं, जो चेयर है, आपकी टेबल है, आपके डोर्स हैं, सारी चीज़ें किससे बन रही हैं, ये वुड से बन रही हैं, एंड दैट इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर डिफॉरेस्टेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिफॉरेस्टेशन का कारण बन रही हैं, जिससे हमारे फॉरेस्ट डेली बेसिस पे काटे जा रहे हैं। Extensive deforestation also contributes to global warming. Forests absorb carbon dioxide from atmosphere as a part of natural carbon cycle. When forests are cut down, the carbon dioxide previously stored in the trees is released into atmosphere. तो क्या मतलब हुआ, आप सबको पता है, प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रीज क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और विद कम्बिनेशन ऑफ वाटर दे कन्वर्ट इट इन द फूड। मतलब ये किसमें, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंबाइन इट विद द वाटर एंड फूड इज मेंटेन्ड और फूड इज मेड, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने ली तो वो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में थोड़ा थोड़ा कम होता है, क्योंकि प्लांट्स इतने सारे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो कंज्यूम कर रहे हैं। बट जब वो ट्रीज ही कट गए तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड का तो अमाउंट बढ़ जाएगा आपके एटमॉस्फेयर में। क्योंकि कोई भी चीज़, अगर आप ये सोचो ना, आपके घर में 2 एप्पल्स पड़े हैं और 2 बच्चे हैं, उन्होंने एक एक एप्पल खा लिया। अब वो बच्चे स्कूल चले गए या हॉस्टल चले गए तो वो 2 एप्पल्स तो वैसे के वैसे रहे ना, किसी ने खाया नहीं। सिमिलरली क्या हुआ, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाले प्लांट्स ही नहीं रहे, दे आर डिफॉरेस्टेड, उनको काट दिया गया है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का तो लेवल अपने आप ही इंक्रीज होगा ना। और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होना, ग्रीन हाउस का, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एटमॉस्फेयर में जाके एक लेयर बना देती है। उससे क्या होता है कि जितनी भी जो हीट रेडिएशंस हमारे अर्थ से जा रही होती है वो उसको एंट्रैप कर लेती है, मतलब एंट्रैप कर लेती है, बाहर नहीं जाने देती। उससे क्या होता है, हमारा जो हीट लेवल है अर्थ का वो इंक्रीज होने लगता है, और उसको ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट की जो एनर्जी है या इसको रेडिएशंस कहिए, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है, और उसके कारण ही आपका ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जो मैं आपको आगे भी समझाऊंगी। तो उससे क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन से आपका जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो गया। अब आप
आपका क्या, जो मैंने बताया डिफॉरेस्टेशन तो हो गया, लेकिन उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए, ग्लोबल वार्मिंग, जैसे मैंने आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग क्या हुई कि कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने से आपकी हीटिंग जो एटमॉस्फेयर में है वो इंक्रीज हो गई। अब जब ये गर्मी हुई तो जो पोलर आइस थी आपकी, ग्लेशियर्स थी, जो माउंटेन्स पे आपके आइस जमी हुई है, वो धीरे धीरे मेल्ट करने लगी। अब वो मेल्ट करके पानी बिचा रहा है, वो कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली वो सीज में, रिवर्स में जाएगा। तो कई बार इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि उनके अंदर फ्लड आ जाती है, और फ्लड आ जाती है तो फ्लड आने से क्या होगा कि जो आपके फॉरेस्ट हैं वो भी बेचारे पानी में डूब जाते हैं, और जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो भी पानी में डूब जाते हैं, और जो आप कहोगे सी क्रिएचर्स हैं, जो मतलब वाटर में रहने वाली बॉडीज हैं, वो बेचारी फ्लड के साथ साथ बाहर आके वो वैसे मर जाती हैं। तो तीनों टाइप से लॉस हुआ। डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल, अब डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल कैसे हुआ, एज यू ऑल नो, कार्बन डाइऑक्साइड से ये क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का एक्सेल आउट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। तो जब प्लांट्स ही नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ले नहीं पा रहे बेचारे, ऑक्सीजन कहाँ से छोड़ेंगे, तो ऑक्सीजन का लेवल भी हमारे एटमॉस्फेयर में डिक्रीज हो गया। अब प्लांट्स क्या है, प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। आप पढ़ चुके हैं एक प्रोसेस ट्रांसपीरेशन की, इनके अंदर एक स्टोमेटा होते हैं इनके लीव्स में, जिसके थ्रू ये वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। फिर वही बात आ गई, जब प्लांट्स हैं ही नहीं, जब आपका डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, तो वाटर वेपर्स कैसे आएंगे, वाटर वेपर्स नहीं आएंगे तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे, क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो डेफिनेटली रेन नहीं आएगी। अब रेन नहीं आएगी तो उससे क्या होगा, आपके ड्रॉट्स आएंगे। ड्रॉट्स क्या होते हैं कि अकाल पड़ जाएगा, कहीं भी कोई भी पानी नहीं होगा और वो प्यास से मर जाएंगे बेचारे, वो ड्रॉट की कंडीशन। तो ये 4-5 चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं कि आपको इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन कई बार लर्न करना पड़ता है ना, तो आपको होता है इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, तो ये एक बार इंटरलिंक्डिंग है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, और क्या होता है, वाटर रिटेंशन कम हो रही है तो ड्रॉट्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसके कारण लेस रेनफॉल हो रहा है, और क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन कैसे होगी भाई, प्लांट्स तो हमारे ऊपर से गए, प्लांट्स ऊपर से गए, बट जो ट्रीज़ की क्या टेंडेंसी होती है, ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल क्या करते हैं, जैसे आपके हाथ पैर हैं, आप आसपास की चीज़ें पकड़ के रखते हैं ना, सिमिलरली रूट्स क्या करते हैं, रूट्स अपनी आसपास की जो सॉइल होती है उसको अपने पर मतलब स्टिक करके रखते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। उससे क्या होता है कि रूट से सॉइल पकड़ी जाती है और वो इधर उधर नहीं भागती, उसका इरोजन नहीं होता। बट जब ट्रीज ही नहीं है तो सॉइल तो फ्री है, वो कहीं भी खेलने भाग सकती है, और वो इतनी ज़्यादा भाग जाती है कि सॉइल इरोजन ही हो जाता है, वो चली जाती है। तो इसलिए सॉइल इरोजन भी हो गया। और सॉइल इरोजन क्या होता है, उससे जो टॉप फर्टाइल लेयर होती है ना आपकी, जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस होते हैं, वो विद द फ्लड सारी वाश अवे हो जाती है। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या हुई कि चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट बन गए, क्योंकि क्या हुआ, टॉप लेयर आपकी सॉइल की वाश अवे होगी फ्लड से या विंड से, और उससे क्या हुआ, डेजर्ट टाइप, मतलब नीचे की जो अनफर्टाइल रॉक टाइप सी थी वो बाहर आ गई, फर्टाइल सॉइल आपकी इरोज हो गई, तो उससे क्या हुआ, आपका डेजर्ट बन गया। वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है। वाटर लेवल कैसे भी डिक्रीज हो गया, क्योंकि जो आपका वाटर टेबल है उससे जो है रूट्स ऑफ प्लांट क्या या ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं पानी, तो वाटर लेवल को वो सक करते रहते हैं। जैसे आप पाइप से पानी ऊपर उठाते हैं ना, उसी ढंग से रूट्स पानी को ऊपर उठाते हैं। अब ना जब पानी है, ना रूट्स हैं, ना ट्रीज हैं, ना कोई फॉरेस्ट हैं, तो वो पानी को सक कौन करेगा, तो उससे क्या होता है, वाटर का लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। अब ये तो सबको ही पता है, जो एनिमल्स बेचारे कहाँ रहेंगे, एनिमल्स बिकम होमलेस। और चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी, अब सॉइल कैसे भी बदल गई, सॉइल ऐसे बदल गई क्योंकि सॉइल है उसके ऊपर ह्यूमस होती है। ह्यूमस ऑल यू नो कैसे होती है, ह्यूमस बनती है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से, मतलब पत्ते हो गए और कोई एनिमल की डेथ हो गई, उसके ऊपर माइक्रोब्स ने काम किया, तो वो सब धीरे धीरे डिकम्पोजिशन से ह्यूमस बन जाती है।
अब ये सब चीज़ें हैं ही नहीं, ना पत्ते हैं, ना एनिमल्स हैं, ना फॉरेस्ट है, ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो डिकम्पोजिशन कैसे होगी और ह्यूमस कैसे बनेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई कि इन सब चीज़ों से आपकी जो है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल लॉस हो जाता है और आपकी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है। तो ये सब थे इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और ये जनरली पूछा जाता है, मतलब तब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में आ जाते हैं और ये डिफॉरेस्टेशन के इम्पैक्ट्स मैं तो भूल गई या तो मैं तो भूल गया। इसमें कोई भूलने की बात नहीं है, आप को रिलेट करके चलोगे कि हाँ प्लांट्स के आसपास क्या है, प्लांट्स के आसपास सॉइल है, प्लांट्स के आसपास ऑक्सीजन, मतलब इन सब की चीज़ में क्या मतलब डिफरेंस आ रहा है। तो आपको इसको इतना ज़्यादा याद करना या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसको ईजीली समझ के लिख सकते हैं। अच्छा, एक और क्या फ़र्क हुआ बायोडाइवर्सिटी के, एक तो हमारा बायोडाइवर्सिटी का क्या रीज़न था, डिफॉरेस्टेशन। वन मोर इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो ह्यूमन्स की एक्टिविटी हैं जैसे पॉल्यूशन क्रिएटिंग, उससे क्या हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एंड सेकेंड मेजर इम्पैक्ट इज बाय ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस के कारण हो रही है। जो गैसेस हैं फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, फ्रॉम फैक्ट्रीज, किसी भी ढंग से वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं, जिससे हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है, पोलर कैप्स और आइस शीट्स मेल्ट हो रही हैं और उससे फ्लड्स आ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ग्लोबल वार्मिंग के अंडर जो भी आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पे नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, या तो वो मारे जा रहे हैं या वो होमलेस हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज भी एक बायोडाइवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। वन मोर इम्पॉर्टेंट कारण इज नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज क्या होती हैं, जो भगवान की तरफ से होती हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमें इसमें कोई दोष नहीं दे सकता कि ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम है ये। तो नेचुरल कैलेमिटीज में आप क्या काउंट करते हैं, जैसे जियोलॉजिकल मीन्स क्या होता है, जो अर्थ पे हो रही होती हैं, और मेट्रोलॉजिकल क्या होती है, दैट आर कॉज्ड इन स्काई, जो आसमानी ताकत होती हैं। तो इसके अंदर जियोलॉजिकल के अंदर आप क्या काउंट करेंगे, जैसे अर्थक्वेक आ गया, ये प्लेट्स हैं जो हमारी जिस पे हमारी धरती टिकी हुई है वो हिल जाती हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, अच्छा हरिकेन्स आ जाता है, सुनामी आ जाती हैं, वॉल्केनोज आ जाते हैं। अब हम बेचारे इसमें कुछ नहीं कर रहे, बट ये क्या है, ये भी एक बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का बहुत ज़्यादा कारण हो जाता है। ये देखिए, ये आपका आ रहा है ना फ्लड, कितना तेज़ी से, सुनामी, कुछ भी कह लीजिए इसको, ये सारा का सारा फॉरेस्ट है, सारा अपने साथ ले जाएगा। और उससे क्या होगा, फॉरेस्ट है, इसमें कितने एनिमल्स रह रहे होते हैं, और उनकी छोटे क्रिएचर्स की तो बात ही मत करो, उनका तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ये सब क्या हो जाता है, ये एनवायरनमेंट इफेक्ट जो हो रहा है, ये सारा का सारा ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा मेजर कारण बन जाता है। तो ये सारे कारण थे, जैसे क्या क्या आपका सबसे बड़ा था डिफॉरेस्टेशन, देन वाज क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल कैलेमिटीज। दीज all are the main और important reasons of बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछेगा व्हाट आर द रीजंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो आप ये 3 रीज़न इम्पॉर्टेंट मतलब लिख सकते हैं और इनका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से बता सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ कंजर्वेशन, और इसके आगे स्टार्ट करूंगी। मेरे ख्याल से इतना आपको अभी तक समझ आ गया होगा, तो आप इतना पढ़िए और नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो में कवर करना चाहूँगी। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।